Hello dear students, welcome to the class today. How are you all doing? So children, we are carrying on with this chapter where we are talking about people as resource. Last class, I had shown you some of the major points, some of the major things, some of the major activities that make people as a resource. People in our country, they are to be always as a resource. हमेशा कंट्री के लोगों को रिसोर्स बना के रखना है. They should be always an asset and never a liability. Liability, क्यों हम इतनी जिम्मेदारी उठाएंगे? Why should we take so much of responsibility? Got it? We are not at all responsible if somebody is educated, well trained, and still that person is like a burden on the family, तो ये तो सही नहीं है. This is not a correct practice. So we have to see that the people who are there staying with us, they should be always an asset. Two of the words that we understood in the last class was an asset and liability. I told you, we discussed that in your family, the parents must feel proud of you कि अरे ये तो हमारी जमा पूंजी है, ये तो हमारा नाम रोशन करेगा. These kind of statements that come from parent, my dear students, please understand, these are those parents who always feel and who always take care of this, that the child who is there in the family must always be an asset for the family. हमेशा फैमिली के लिए वो जमा पूंजी बने, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है. Some investment is to be done. Some investment is to be done to make the workforce as an asset. For example, when we educate someone, we are making that person as an asset. Education. आपके पास घर में कोई बीमार है, जो हमेशा से ही बीमार है, is always not well, not doing well, and is keeping unwell, keeping unfit. So for these kind of people, इस तरह के लोगों के लिए हमको क्या करना है? We are developing a concept of healthy environment. Okay, so education, health needs to be taken care of to make an individual a resource. किसी भी इंडिविजुअल को रिसोर्स बनाने के लिए हमको ये देखना ही पड़ेगा, we need to see that we are utilizing that human being and we are taking care of that human being in a proper manner. स्टोरी जो हमने पढ़ी थी, अभी अगेन आई विल बी डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ सकल. ओके, लार्ज पॉपुलेशन. हमेशा से what has happened that we consider large population as a burden. इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो बोझ ही होगा. क्यों बोझ होगा भाई?
Why do we see the large population as a boj? Large population is not a boj. Large population can be an asset also. सही तरीके से अगर पॉपुलेशन को यूटिलाइज किया जाए, if we take care of the population, if we invest in the population, that population can prove to be an asset. Isn't it? That is very important. And consider it as a liability than a asset. जिम्मेवारी हम समझते हैं, लाइबिलिटी हम समझते हैं. Okay, so population is never a liability. It can turn into an asset by investment in human capital. ठीक है, we have to develop, we need to develop human capital. ह्यूमन कैपिटल हमको डेवलप करना ही है, ह्यूमन कैपिटल हमको बनाना ही है. एंड कैसे बना सकते हैं? वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल. जैसे मैंने पहले ही बताया, एजुकेशन एंड हेल्थ नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. इन दो चीजों की अगर हम केयर कर लेते हैं तो पॉपुलेशन को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं. ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स, इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि पैसा ही पैसे को खींचता है. जब तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हाउ विल द पॉपुलेशन बी एन एसेट? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी नीड्स टू बी वेरी क्लियर. ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो आप बाकी की चीजें किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे? हाउ विल द कंट्री डेवलप? सारे के सारे लोग अगर घर में बैठे रहेंगे, बोझ बन जाएंगे, कुछ आगे के लिए सोचेंगे ही नहीं, तो हम इस पॉपुलेशन के साथ क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग विद दिस पॉपुलेशन? ओके, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स. एंड दो हमारे पास स्टोरीज थी, दो केसेस थे, लाइक स्टोरी ऑफ Sakal. We discussed it yesterday, but then I just wanted to give you a brief outline of Sakal की फैमिली का. दो हैं, दो बच्चों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. पहले हम सकल की फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Who is living in the same village? Vilas and Sakal live in, एक ही विलेज में रह रहे हैं. And the name of the village is Semapur. Got it? अब क्या है? सकल कौन है? सकल इज a 12-year-old boy. एज कितनी है? सकल इज 12-year-old boy. छोटा बच्चा है. अब देखो how nicely the parents have thought about his future, which made the future of Sakal and the future of Sakal's family also. Okay, Mother Sheila is looking after domestic chores. Mother Sheila is looking after domestic chores. घर के कामकाज की वो देखभाल कर रही है. एंड फादर बूटा चौधरी क्या कर रहे हैं? ही इज वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल फील्ड. फादर बूटा चौधरी इज वर्किंग इन एग्रीकल्चरल फील्ड. Got it? बूटा चौधरी खेतों में काम कर रहे हैं.
एंड आप सोचो कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, यंगर, ही हैज गॉट यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑल्सो, जीतू एंड सीतू. He has younger brother and sister Jeetu and Situ. जीतू सीतू हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, अब साथ में रहते हैं. अब क्या है, लेकिन अब इनके अंकल हैं श्याम, हु हैड पास दी मैट्रिक का एग्जाम पास करके बैठने का क्या मतलब बनता, फिर इतना पढ़ाई करने की क्या मतलब था. 10th क्लास पास किया है तो डू समथिंग फॉर द फैमिली ना, डू टेक केयर ऑफ द फैमिली, बट ही इज नॉट डूइंग दैट. हिज अंकल हैज डन matriculation but is sitting idle at home. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है, घर में आराम से बिना कुछ काम किए हुए बैठे हुए हैं, तो इट इज द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जो पढ़ाई आपने की उसका आप इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं. यू आर सिटिंग आइडल लाइक बर्डन ऑन द फैमिली. खाना भी वो आपको खिला रहे हैं, आपके इलाज भी करवा रहे हैं, आपकी केयर भी कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ घर में बैठे हुए हैं. दिस इज नॉट डन. इस तरह के लोगों को या इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है. दिस इज व्हाट इज देयर. सो बूटा एंड शीला चाहते थे कि सकल पढ़ाई लिखाई कर ले. बूटा एंड शीला, बूटा एंड शीला wanted to educate सकल. पढ़ा लिखा के हर एक पेरेंट्स का सपना होता है. देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द ड्रीम ऑफ ऑल दी पेरेंट्स की बच्चों की पढ़ाई. आज देखिए, so much of efforts your parents are taking just because your studies must not stop. मोबाइल से लेके लैपटॉप से लेके जिस चीज की भी जरूरत होती है, they are readily making it available for you so that the studies must not stop. It must carry on. And क्या किया उन्होंने, he started studying and completed his higher secondary examination. 10th क्लास तक पढ़ा. कितने अच्छे से पेरेंट्स ने प्लान किया है. अब देखो किस तरह से, हाउ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्स. दिस इज व्हाट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ. अभी हम यहाँ पे यही चीज डिस्कस करेंगे. Now, for this, his uncle has Shyam. They forced him to join the village school, and he started studying. वो नहीं पढ़ना चाहता था. वो सोचा था कि काम कर लेंगे, खेत में चले जाएंगे. पेरेंट्स सेड नो, पढ़ो बेटा, एटलीस्ट कोई तो पढ़े, तुम तो पढ़ो, ठीक है. They wanted him to study, so got his admission done in school, and he cleared higher secondary examination. अपना एग्जाम इसने क्लियर किया. हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन ही क्लियर्ड, एंड हिज फादर, उन्होंने कहा कि पढ़ाई रोकना नहीं है बेटा, क्लास 10th कर दिया है, चाचा की तरह घर पे नहीं बैठना है. यस, ऑफ कोर्स, दीज काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस आर वेरी कॉमन इन द हाउसेज जहां ऐसी चीजें होती हैं.
where these kind of conditions arise, there these kind of conversations are very common. So father persuaded him to continue his study. Persuaded means उन्होंने जिद किया. His father persuaded him to continue his studies. पढ़ाई को उन्होंने रोका नहीं. He did not stop his studies. And क्या किया उन्होंने? He raised a loan for Sakal. He raised a loan for Sakal. ठीक है, सकल के लिए इन्होंने लोन लिया बैंक से. एजुकेशन के लिए इमीडिएटली लोन मिल जाता है. बैंक्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि जहां पे भी किसी भी बच्चे को एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है तो पैसे की वजह से बच्चे की एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए. इन अ वेरी लोअर इंटरेस्ट रेट ही वाज गिवन लोन एंड अ वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स. ठीक है, एंड made him pursue a vocational course. Vocational means साल भर के लिए या 6 महीने के लिए इस तरह का ये सब कोर्स होता है. कोर्स इन कंप्यूटर. उन्होंने कहा बेटा कंप्यूटर पढ़ लो. द फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स. ऑफ कोर्स अब आज देख लो, जिन लोगों ने कभी कंप्यूटर की पढ़ाई की होगी उस समय उतना काम नहीं मिल रहा होगा. टुडे द पीपल who are engaged into the computer business, सबसे ज्यादा उन्हीं का काम चल रहा है. They are the most engaged people now. Okay, that is there. And सकल कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ लेता है. And now सकल was meritorious, बड़ा मेहनती बच्चा है, and interested in studies from the beginning. सकल was very meritorious, मेहनती था बच्चा, and interested in studies from the very beginning. शुरू से ही वो पढ़ाई लिखाई में उसको बहुत इंटरेस्ट था. वो भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता था. एंड विथ ग्रेट, खूब बहुत बहुत चुलबुला बच्चा था. विथ ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. खुशी खुशी इसने क्या किया? अपने सारे कोर्स को कंप्लीट किया, अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया. एंड आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म. प्लान्ड वे में काम हुआ ना. आफ्टर सम टाइम ही गॉट अ जॉब इन प्राइवेट फर्म. एक प्राइवेट फर्म में इसको नौकरी मिल गई, सकल को. ये व्हेन ही गॉट हिज जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, अच्छा पैसा मिल रहा था. फैमिली बहुत गरीब थी, बच्चा बहुत मन लगा के काम कर रहा था. एंड बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट ही डिजाइन्ड अ न्यू सॉफ्टवेयर. एक नए तरीके का एक सॉफ्टवेयर इन्होंने डिजाइन किया, जिसमें कि द फर्म ही वॉज वर्किंग, वहां पे सेल बहुत बढ़ गई. ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर द सेल ऑफ द फर्म इंक्रीज. ड्यू टू दिस सॉफ्टवेयर द सेल ऑफ
the firm increased. काफी फायदा हुआ जिस फॉर्म में ये काम कर रहा था. सोचो, प्लान्स के साथ अच्छे से किया, एंड हिज बॉस एक्नॉलेज्ड his services and rewarded him with a promotion. His boss acknowledged him for his services and अब उसको प्रमोट भी कर दिया. gave him promotion. कितनी बड़ी बात है. This was such an enthusiastic thing for सकल. पढ़ाई भी की, काम भी किया, काम में तरक्की भी हो गई. किस लिए? क्योंकि द काइंड ऑफ वर्क दैट ही हैज डन, जिस तरह का काम सकल ने किया, ही वॉज रिवार्डेड फॉर दैट. हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जा सकती है अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो. If the people are working in a very proper manner, it is likely to be there that people will sail through, people will go through. ये तो थी सकल की स्टोरी. लेकिन अब देयर इज अ प्रॉब्लम. इसका फ्रेंड है, सेम एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन इनकी देखिए अपब्रिंगिंग अलग अलग है, प्रॉब्लम्स अलग अलग है. तो ये हमने जब किस तरह से हाउ द ह्यूमन रिसोर्स, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख के रखा हुआ है एसेट एंड लाइबिलिटी, कि एक जगह पे बच्चा जो है वो एसेट बन जाता है, दूसरे जगह पे बच्चा जो है वो लाइबिलिटी बन जाता है. ऑन द अदर हैंड साइड द चाइल्ड बिकम्स अ लाइबिलिटी. कैसे? अब जैसे विलास, सकल वॉज 12-year-old बॉय, विलास इज 11-year-old. ठीक है, 11 साल का बच्चा है ये, एंड रिसाइडिंग इन द सेम विलेज. जहां सकल रहता है वहीं पे ये रहता है. महेश जो इसके विलास के पिताजी है ना, विलास के पिताजी महेश वॉज अ फिशरमैन. विलास फादर महेश वॉज अ फिशरमैन. ठीक है, मच्छी पकड़ने का काम करते थे. अब he is a fisherman and but लेकिन and he passed away also. He passed away. His father has passed away when he was only 2 years old. 2 साल के थे तभी. Father passed away when he was 2 years old. अब 2 साल के बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ गई. आप यही सोचो कैसे बाकी का काम ये आगे लेके जाएगा. हाउ विल ही लुक आफ्टर, हाउ विल द मदर की हालत ऐसी खराब थी. गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली. गीता जो है शी वॉज सेलिंग फूड. गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी. वही पिताजी का ही काम आगे लेके जाएंगे ना, फॉर दी फैमिली. Now what happened? She bought fish. वो फिश खरीदती है लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाय मंडी. पास में मच्छी बाजार है, द मंडी दैट इज देयर, वहां पे ले जाके शी इज सेलिंग इट. शी कॉट फिश एंड सोल्ड इट इन नियर बाय मंडी. बगल का जो मच्छी बाजार है वहां ले जाके शी इज सेलिंग दिस फिश एंड शी कुड अर्न ओनली 20 to 30 अ डे बाय सेलिंग फिश. फिश बेच के कितने लोग फिश खाते ही हैं. ठीक है, शी कुड अर्न 20 to 30 rupees per day to
after selling fish. क्या होता है, 20-30 रुपए में कैसे खर्चा चलेगा? And what happened? Vishal became a patient of arthritis. खाना 20-30 रुपए में कैसे खाना आएगा? हाँ, Vilas became a patient of arthritis. आर्थराइटिस वो होता है ना जिसमें जॉइंट्स में पेन होती है. ऑल द जॉइंट्स ना, दीज ऑल पेन, और इतनी पेन होती है दैट इट्स मेनी अ टाइम्स अनबेरेबल. लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं. दैट काइंड ऑफ अ पेन हैपेंस एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आर्थराइटिस. तो और एंड हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर. 20-30 रुपए में वेयर विल शी टेक हिम टू द डॉक्टर? ओके, आप इसी से अंदाजा लगा लो दैट व्हाट अ बिग प्रॉब्लम इज देयर. मदर could not take him to the doctor. What a deplorable condition. कितने बुरे हालात हैं इनकी फैमिली के. ओके, एंड स्कूल तो इतना बीमार है, माँ हॉस्पिटल ही नहीं ले जा पा रही है, डॉक्टर के पास नहीं ले जा रही है, ही तो स्कूल कहाँ से भेजेंगी? ही कुड नॉट go to school either. Okay, now what happens is he was not interested in his studies. In studies में भी इसको कोई, इतनी परेशानियों के बाद पढ़ाई कौन करेगा? तो he helped his mother in cooking and also looked after his younger brother Mohan. He helped his mother in cooking. खाना बनाने में माँ की मदद कर रहा है. And looked after his younger brother Mohan. भाई भी है, उसका भी भविष्य क्या होगा? मोहन की भी देखभाल करनी है, मोहन को भी देखना है. So just see the condition of the family. कुछ दिन के बाद मदर फेल सिक. माँ इतना काम करेंगी, 20-30 रुपए कमाएंगी, कहाँ से सही रहेंगी? How will she look after, how will she look after the family? And there was no one in the family to support them. Vilas क्या हुआ? He was forced to sell fish in the same village and बहुत कम पैसे उसको मिलते थे. कोई भी अब उसकी माँ की भी देखभाल करने. तो अब कुछ दिन के बाद क्या हुआ? Vilas also went and started selling fish. So now you can understand the concept of asset and liability. Got it, children? So students, today we understood the story of Vilas. Very unfortunate story. कितना परेशान हुआ है वो. Just compare him to the condition of Sakal. एक तो इसमें it is not the mistake of Vilas. It is the family conditions which has forced him into this condition. The family, the way family was carrying on, that has led Vilas to such a bad position. And Vilas के पिताजी जो है महेश फिशरमैन थे. फादर हैज़ ऑल्सो पास्ड अवे. माँ अकेले सब कुछ देख रही है. कितना देखेगी? नहीं देख पा रही है, एक्चुअली नहीं संभाल पा रही है. The mother is unable to take care of everything. So he is suffering from arthritis. ठीक है. फिश, अच्छा, लैंड ओनर का पोंड है. जो तालाब है ना, तालाब इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द लैंड ओनर. जो ज़मींदार है ना, उनके तालाब से वो मच्छी पकड़ के लेके जाती है सेल करने के लिए. इमेजिन. तो विलास जो है, because of his problems he has become the patient of arthritis.
आर्थराइटिस का वो पेशेंट बन गया है। माँ मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास माँ उसको ले ही नहीं जा पा रही है। स्कूल तो बहुत दूर की बात है। when she cannot afford to take him to the doctor, तो स्कूल कहाँ से भेजेगी? He has got a brother. His mother is earning only a very little money, and just see this picture is there making fun of क्या मतलब, विलास की सिचुएशन देखो और सकल की सिचुएशन देखो। तो how important the education is, that is what is explained here. Okay children, thank you and all the best to you.